On behalf of Press Information Bureau, Jammu and Kashmir and Ladakh, I wholeheartedly welcome you all to the day-long rural media workshop titled Vartalap. I warmly welcome our Chief Guest Deputy Commissioner Leh, Shri Shrikant Balasaheb Suseji. I also welcome August gathering of print and electronic media personnel. I also welcome our Additional Director General of Northern Region, Shri Rajendra Chaudhary ji, who travelled from Chandigarh to participate in Vartalap and interact with you. We also welcome District Information Officer Dr. Kunduk Namgyal ji, whose support also helped us to organize this workshop. I also welcome Shri Ghulam Abbas ji, who is Joint Director, Central Bureau of Communication, Jammu and Kashmir and Ladakh. With additional charge of Jammu and Kashmir and of course UP of Ladakh. I was always willing कि मुझे लगता था कि कब मुझे मौका मिलेगा कि मैं ले जाऊँ. It was always like I would say one of my wishes that I should visit Leh. I knew it was difficult to travel. There are I would say logistic issues. But when you come to this place and then you realize how beautiful the place is, how nature has bestowed its beauties on this particular region, and that is all the more reason that we should be reaching out here to media persons कि यहाँ की जो खूबसूरती है, चाहे वो टूरिज्म से जुड़ी हुई है, चाहे यहाँ के कल्चर से जुड़ी हुई है, यहाँ के आर्ट से जुड़ी है, हिस्ट्री से जुड़ी है, यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में है, that should go out to the rest of the country. Let us spread that honor, that happiness to each and every person, to each and every citizen of the country. And there can again be no better ambassador than you people. जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमने अपने जम्मू कश्मीर के सभी ट्विटर हैंडल्स में, चाहे वो PIB श्रीनगर का था, चाहे CBC जम्मू का था, PIB चंडीगढ़ का था, सभी ट्विटर हैंडल्स में तिरंगा को अपना DP लगा रहा है. I will request all our media persons to follow this. Of course it is purely voluntary. मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर वो अपने आप है. हम तो सिर्फ आपको एक तरह से एक उस पर्टिकुलर ओकेजन की सिग्निफिकेंस के बारे में एक रिमाइंड करा सकते हैं. So in the coming days we hope to see full cooperation from your side in making sure that the 75th year of independence, आज़ादी का अमृत महोत्सव, is celebrated in a befitting manner. हर व्यक्ति को एक बार ही एहसास हो कि आज अगर वो आज़ाद है, आज़ाद देश का नागरिक है, अपनी बात को आराम से रख सकता है. अगर वो बात रखता है तो प्रशासन उसकी सुनता है. यही आज़ादी का असली मतलब है, यही लोकतंत्र है. इसके अंदर उसको गर्व महसूस करना है और उस गर्व के लिए हमें आप लोगों की आवश्यकता है जन जन तक पहुँचाने के लिए. इसी तरह से वैक्सीनेशन का अभी हमने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव किया. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स which we people would like you people to communicate from time to time. सोच के देखिए कि पूरी दुनिया में the total population would be around 790 crores approximately, and we alone in India achieved a vaccination figure of 200 crores. So 1/4 of the entire world's population has been vaccinated by us. Of course, in terms of booster dose, in terms of the second dose, so numbers would be coming like that. लेकिन एक ऐसा देश जहाँ पर आज से जब आज़ादी के बाद हम कहते थे कि देश में सुई बनाने के लिए भी कैपेसिटी नहीं थी, I think we have come really a long way, and that is why we have to really celebrate our 75th year of independence. कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था. Britishers who were ruling us for 200 years have taken our valuable resources back home. They were exporting raw material from here. They were then sending the finished product to us. We were exploited. Our resources were exploited. But within a journey of 75 years, आज हम उस पोजीशन पे पहुंच गए कि पूरी दुनिया को हमने करके दिखाया कि हम 200 करोड़ लोगों को 200 करोड़ डोजेज वैक्सीनेशन कर सकते हैं. Again, I would like you people as media personnel, as eyes and ears of the government, to really propagate this sense of happiness, this sense of achievement. आज जो हमने टॉपिक्स रखे हैं, मुझे लगता है ये टॉपिक फिर से बहुत स्पेसिफिक हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. आयुष्मान भारत का जो एक डिजिटल मिशन चल रहा है, ठीक है, डिजिटल मिशन की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज अल्टीमेटली these schemes must reach the last person
in our country. Last person in the sense आपके गांव में जो सबसे गरीब है उस तक भी ये योजना पहुंचनी चाहिए. अगर आप गांधी जी की बातें याद करो, आज भी गांधी जी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले, 90 साल पहले, 80 साल पहले थे. He used to say that we have to reach to the last man standing. सरकार उस दिन कामयाब होती है जब आप समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति तक, सबसे गरीब व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना पाते हैं. उसमें मुझे लगता है डिजिटल मिशन का एक इन्वॉल्वमेंट, अगर आपको आपका कोई घर में बच्चा पढ़ा लिखा है, वो ऑनलाइन आपको बता दे कि आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ पर है, आपके नज़दीक कैंपेनर आयुष्मान भारत का सेंटर कौन सा है, किस बीमारी के लिए कौन सा स्पेशलिस्ट कहाँ अवेलेबल होगा. आई थिंक दैट इज़ द ग्रेट सक्सेस ऑफ द health initiative taken by the central government in terms of Ayushman Bharat, and this is what we are going to discuss today. और PIB CBC से आए हुए सीनियर ऑफिशियल्स और लेह डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्टेड मीडिया पर्सन्स आप सबको चूले मेरी तरफ से. फर्स्ट ऑफ ऑल PIB को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आई थिंक कोविड के बाद फर्स्ट सच काइंड ऑफ initiative has been taken in Union Territory of Ladakh by PIB. So my congratulations to team for organizing such a workshop. और अभी ADC साहब ने पूरा डिटेल में बताया कि आज की वार्तालाप करने का मकसद क्या है कि PIB CBC जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनका एक इम्पॉर्टेंट आर्म है. जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उनको कॉमन मासेस के पास पहुंचाना, और इसके लिए अलग अलग टूल्स जैसे अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल टूल है कोई भी मैसेज पहुंचाने के लिए. तो आई थिंक आज का जो वर्कशॉप होगा, जो भी हमारे स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उसको एक इफेक्टिव तरीके से हम कॉमन मासेस के पास कैसे पहुंचाएं, उसके लिए आज विचार मंथन होगा कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती है. और मेरा PIB से एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी मेनी वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड लाइक जल जीवन मिशन. आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कई मिनिस्टर्स एंड इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ के जल जीवन मिशन को काफी अप्रिशिएट किया, क्योंकि यहाँ लद्दाख जैसे रीजन में ये स्कीम इम्प्लीमेंट करना, ये एक स्कीम का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. तो ऐसे स्कीम को इम्प्लीमेंट करना काफी चैलेंजिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उसके पीछे काफी हार्ड वर्क रहता है. तो मेरा सजेशन रहेगा, और 2 दिन पहले जब तारिक साहब भी आए थे तो मैंने बताया था कि जो भी यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसको एक नेशनल लेवल पे उसको पहुंचाना, मतलब दूसरे स्टेट में भी पहुंचाना. ट्रू इंटीग्रेशन हम इसको कह सकते हैं कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी क्या क्या अच्छे अच्छे कदम यहाँ पे लिए गए हैं, काफी इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए. तो PIB और मिनिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा कि ये सारे इनिशिएटिव एक इफेक्टिव तरीके से हम सारे मासेस तक पहुंचाए. हमारा डिपार्टमेंट काफी इनिशिएटिव ले रहा है. यहाँ का यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन है, उनकी तरफ से काफी इनिशिएटिव लिए जाते हैं. और हमारा जो यहाँ का जो मीडिया पर्सन्स है उनकी तरफ से भी कोशिश की जाती है. लेकिन एक मैंने ऑब्जर्व किया कि फार खलांग एरिया में भी काफी इनिशिएटिव हमारे लिए जाते हैं. उसको भी एक इफेक्टिव तरीके से पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि ले सेंट्रिक हम ना रहे. नुब्रा है, हमारे चांगतांग रीजन है, काफी रीजन है जो फार फ्लंग एरियाज में भी काफी हम इनिशिएटिव लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से. तो उसको भी एक इफेक्टिव तरीके से पहुंचाने का काम हमारे यहाँ के जो भी मीडिया पर्सन है उनका है. और आप जो भी आप स्टोरी करते हैं हम इसको फॉलो करते हैं. जनरली आपने देखा हो कि मेरा तो थोड़ा सा कम इंटरेक्शन रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा फेसलेस फिलोसॉफी पे बिलीव करता हूँ कि काम दिखा जाए और खुद का फेस सामने ना आए, तो उस पर मैं बिलीव करता हूँ. तो मुझे कम बोलते हैं काफी मीडिया पर्सन कि आप मीडिया से कम इंटरेक्ट करते हैं. तो मेरा एक कुछ अलग तरीके से फिलोसॉफी है, और जो भी काम हम एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं उसको हम पहुंचाने का काम हम करते हैं. तो आपकी स्टोरीज भी हम फॉलो करते हैं, और जो भी आप पॉइंट्स उठाते हैं मैं फॉलो करता हूँ उसको.
रिएक्ट नहीं करता। मैं जनरली व्हाट्सएप ग्रुप्स में सारे हैं, मैं अवेलेबल होता हूँ। तो जो भी हमारे प्रोग्राम्स के बारे में ग्राउंड पे जो दिक्कतें आ रही है, जो आपने हमारे मीडिया पर्सन उसको उठाते हैं, तो उसको हम रेक्टिफाई करने की हम कोशिश करते हैं। आपने देखा भी है, दोनों तरीके से काफी उसको कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव और जल्दी से जल्दी उसका जो भी करेक्टिव एक्शन लेने हैं। मैं नहीं मानता कि हमारा कोई भी हम इनिशिएटिव लेते तो वो परफेक्ट होता है। कुछ ना कुछ एरर्स या कुछ लैकुनास रहते हैं, तो उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। वो आपके माध्यम से ही होता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पीआईबी का एक अगर यहाँ पे ऑफिस रहे, परमानेंट सेटअप यहाँ पे अगर हो जाए, तो बहुत एक जो हम अभी कर रहे हैं वार्तालाप, ये तो मतलब साल में 1-2 बार हो सकता है। अगर एक परमानेंट यहाँ पे ऑफिस सेटअप हो जाए, मैन पावर डेप्यूट हो जाए, तो एक क्या बोल सकते हैं हम, पीआईबी के का एक अच्छी तरीके से यूज हम कर सकते हैं। और हमारे जितने भी इनिशिएटिव लद्दाख में हो रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी फोकस है कि लद्दाख में जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसको हाईलाइट किया जाए। और उनका भी फोकस रहा है कि यहाँ का डेवलपमेंट एक तेजी से हो जाए। यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के लिए भी यही मकसद था। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पीआईबी यहाँ पे एक परमानेंट प्रेजेंस यहाँ पे इस्टेब्लिश करे लद्दाख में, ताकि ये सारे काम आसानी से हो पाए। तो थैंक यू पीआईबी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वर्कशॉप। एंड मुझे लगता है ये 2 दिन में जो भी इश्यूज है वो यहाँ पे विस्तार में उसमें विचार मंथन होगा। और एक अच्छी तरीके से जो हमारा इनिशिएटिव था ये वार्तालाप आयोजित करने में, कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम को हम कैसे एक इफेक्टिव तरीके से मासेस की तरफ पहुंचाए, तो पीआईबी और हमारे मीडिया पर्सन के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। तो थैंक यू जूलियन। Health ecosystem through wide range of data, information in infrastructure services while ensuring security, confidentiality, and privacy. So, what is it that ABDM intends to resolve? Normally, what you find is the citizen, they don't have access to the all medical records. They don't have information about the doctors and the hospitals and laboratories, and they don't have any knowledge about the qualification of doctors they are visiting, and most importantly, which is very relevant to places like Ladakh, they don't have choice to consult doctor remotely. And likewise, hospitals, labs, and doctors, they also don't have any access to patients' medical history, and they don't have ability to ensure the follow-up after the treatment, and they don't have any features to remotely consult the patient, and there is no ease of doing business. Likewise, policymakers and program managers also don't have any sufficient data and information about what kind of diseases are coming up and that can be prevented in time, and there is no complete monitoring and control in unified manner. So the guiding principles for ABDM through technology and policies, since the data are validated by authorized entities, so it is going to be a single source of truth for across the country, and the architecture is federated, so there will be no central storage of data. And since it is open API and interoperable, any compliant healthcare entity can be integrated into the ABDM and start functioning independently. And we are using widely accepted industry standards that for the framework. And in the policy, because it is based on the consent-based information exchange of data, the privacy and security is by design, and all citizens of the country can participate. For the private entities, the private doctors and private hospitals, the participation into this ABDM will be like voluntary in type. So any interested person can only opt to be the part of the ABDM. 1975 in India. It was launched in 33 blocks of the country in 1975 on 2nd October, the 106th birth anniversary of Mahatma Gandhi, the father of nation. ICDS was designed as a benefiting tribute to his ideals. In Leh district, it was started in 1980
with 35 Anganwadi centers. At present, there are 484 Anganwadi centers sanctioned and 461 Anganwadi centers functioning in every villages of the district with 7,370 beneficiaries. Officer, ANM and Anganwadi worker. Regular health checkups, recording of height and weight, management of malnutrition, treatment of diarrhea, deworming and various health services are provided to the children at the Anganwadi center. PID का डेडिकेटेड यहाँ पे एक सेंटर के लिए हम ट्राई करेंगे जिसमें यहीं के अगर स्टाफ उसमें अगर एंगेज हो जाएंगे तो समथिंग लाइक दिस इन विच द गवर्नमेंट कैन शेयर in detail about these schemes and benefits that that the government actually is implementing in the fields, especially in the rural areas, are actually communicated to the media person in details, so that फिर आप अपने ही आप जो भी आपके जो है आपके जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या आपके जो डिजिटल मीडिया है या जो भी आपकी जो प्रिंटेड मीडिया है उसके थ्रू आप उसको फर्दर एम्पलीफाई करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं. तो वन थिंग इज़ डेफिनेटली राइट. जब से हमने अभी रिसेंटली अभी आपने देखा उसके हेल्थ पे डिजिटल जो हेल्थ मिशन पे एंड उसके बाद हमने सोशल जो ICDS के जो आंगनवाड़ी सेंटर्स के बारे में सारा किया. तो वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि आप गवर्नमेंट के जो सारे जो फैक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली डाटा बेस होते हैं, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं और बहुत सारे स्कीम्स के अंदर बहुत सारे लंबे नाम्स होते हैं. तो नेचुरली आप वो इस तरह के मतलब आप स्कीम्स को अगर लंबा रखते हो या बहुत सारे डिटेल में देते हो तो नेचुरली उतना इंटरेस्ट आप उसको काफ़ी देर तक सस्टेन नहीं कर पाते हो. तो यही होता है कि गवर्नमेंट करता बहुत कुछ है स्पेशली पॉजिटिव साइड पे, लेकिन उसके जितने उसके जो इफेक्ट्स है उसके जो इम्पैक्ट्स है उतना मतलब क्लैरिटी के साथ लोगों तक या पहुंच नहीं पाता है, या वो एक्चुअली वहाँ तक अगर पहुँचता है तो उसका जो फीडबैक है नेचुरली फिर हम तक वापस नहीं पहुँच पाता है कि उसमें कितने इम्पैक्ट हुए हैं. तो आज के डेट पे तो एक तो श्योर है जब से UT बना है, जब से यहाँ पे नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हुआ है, स्कीम्स के जो साइज़ में जो इसमें जितने कॉर्पस जिसमें इसमें फंड्स लग रहे हैं सब में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट उसमें हमने जंप किया है. बहुत सारे मतलब एडिशनल जो पहले नहीं होते थे उस तरह की स्कीम आजकल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बहुत सारे जो पहले जो स्कीम चलते थे वही सेम स्कीम्स आजकल बहुत बड़ा होके आजकल मैग्नीफाई होके साइज़ में उसके कॉर्पस में फंड्स में बड़ा हमने उसको करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखने जाओगे रूरल लेवल पे, अगर आप किसी बंदे से पूछोगे या कहीं जाके पूछोगे किसी भी, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो किसी एजुकेशन स्कीम के बेनिफिशियरी हो, चाहे कोई चिल्ड्रन हो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको मेंशन कर रहे थे उसके वो है, तो बहुत सारी इस तरह के पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत सारे इस तरह के पॉजिटिव स्टोरीज है जिस पे एक्चुअली हम एक पॉजिटिव स्टोरी भी एक पॉजिटिव नैरेटिव भी क्रिएट करके दिखा सकते हैं. बाकी अब तो वैसे भी मतलब अगर आपने ग्लूम के कैप्चर करना है, मतलब थोड़ा सा अगर आपने दूसरे अगर इस तरह के जो मतलब जो नॉन पॉजिटिव अगर न्यूज़ कैप्चर करने हैं तो वो भी काफ़ी सारे हैं. तो देन अगेन लाइक आई सेड कि आप मुझे आपको पता है कि आप जो देते हो न्यूज़ में नॉर्मली वो बैलेंस ही होता है विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट अगेन. तो इस तरह के जो इवेंट करने का यही एक एक्चुअली एक पर्पस है मीडिया के साथ लेके, स्पेशली मीडिया वर्कशॉप करने का, ताकि आपका जो न्यूज़ हो वो एक्यूरेट हो, फैक्ट बेस्ड हो, अनबाइस्ड हो, क्रेडिबल हो और एक बैलेंस तरह से एक रिपोर्टिंग हो. दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट. और सर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस सोसाइटी के जो भी मतलब जो ऑलमोस्ट जो ब्राइटेस्ट जो है जो सोसाइटी के सेगमेंट है वो सारे बाय चॉइस ही मतलब मीडिया में है. तो आई कैन से दैट फॉर श्योर कि जब भी मैं इनका भी न्यूज़ पढ़ता हूँ आई रीड दैट बिकॉज ऐसे एनी इन्फॉर्मेशन हैव टू बी इन द लूप. तो आई रियली फील कि मतलब नथिंग दैट दे से मच इज समथिंग दैट डजंट रिफ्लेक्ट द ट्रूथ. ठीक ही होता है इनका. तो अगेन सेइंग दैट देयर लाइक सम डिफिकल्टीज जो आते हैं, आप पूछने जाते हो बैलेंस वर्जन के लिए, आप अगर डिपार्टमेंट के जाते हो तो देन दे मेक यू थोड़ा सा चक्कर मारना पड़ता है, पता नहीं चलता है कि कौन एक्चुअली वो सही वर्जन देगा, या जो मतलब जिस तरह का कोई अगर आपने फैक्ट निकालना है तो एक्चुअली हु इज़ एक्चुअली सपोज टू स्पीक टू द मीडिया पर्सन. या तो एक सही है कि बहुत सारे लोग चेक करते हैं, मैं भी कभी पूछने लग जाता हूँ कि एक्चुअली एम आई ऑथराइज्ड टू एक्चुअली स्पीक टू द मीडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. तो नेक्स्ट जो भी हम करेंगे मीट करेंगे विच वी गोइंग टू कंडक्ट वेरी सून ऑन द 12th ऑफ दिस मंथ इन सम अदर वेन्यू. तो वहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली अगर गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपको डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का अगर वर्जन चाहिए तो हु विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली अप्रोच इट. मे बी इट विल बी एडी इन्फॉर्मेशन, मे बी समबडी सिटिंग इन द इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट इन द इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरीट इटसेल्फ. तो वो पता करके आपको भी हम करेंगे सो दैट ये जो इश्यूज़ हैं जो एक्चुअली हम उसको अगर आप उसको रिजॉल्व करेंगे तो एक बेटर आपको भी एक अनबैलेंस वर्जन मिल सकता है, जिस तरह से स्टोरी फिर एक अच्छी तरह से एक फैक्ट बेस हो सकता है. तो उसको करने के लिए वी डेफिनेटली विल ट्राई टू फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर दैट. मे बी ए स्पोक्स पर्सन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट
maybe the district being maybe somebody from the secretariat, ये शायद हायर लेवल पे भी आपका जो फीडबैक है उसको हम लेके जाएंगे, एंड देन मे बी वी आर वेरी पॉजिटिव कि कुछ ना कुछ इस पर भी डेफिनेटली सोल्यूशन आएगा, बिकॉज दिस इज़ ट्रू, अगर आप एक जगह जाते हो तो वर्जन नहीं मिल पाता है, देन दे शो यू समबडी हायर अप, एंड देन वहाँ से नीचे आते हो तो नेचुरली देन यू विल प्रिंट समथिंग जो आपने दूसरे पार्टी के जो ऑब्जर्वेशन है उनके जो रिकॉर्डेड नैरेटिव के बेस पे है. Yeah. Thank you so much, Iriji sir, Tariq sir, and Namgyal ji, and everyone here, Ghulam Abbas sir, and all my media friends. So, I would not use any presentation and all, but I will just like do a formal talk, maybe a casual one. So, the thing is that right now we are in an age where we are, as media professionals, are dealing with a lot of changes around. So, अगर हम एक महीने पिछला बात करें या 6 months before बात करें, and right now we would definitely be inching towards technological advances. So Twitter follower number भी बढ़ जाता है, Facebook के पेज likes भी बढ़ जाते हैं साइड बाय साइड. पिछले साल जो पेज था वो आज, जो पिछले साल 25,000 का था, आज वो 1 लाख हो जाता है. ट्विटर फॉलोअर्स भी जैसे हमारा ऐसे हुआ, एक्सेल्स लाइक एक्सपोनेंशियली. एंड हम अगर ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें तो हमारा रीडरशिप थोड़ा सा स्टैग्नेंट रह जाता है while we deal with print media, but still it's going on and it is basically the backbone of all the media that goes around. So आज अब इस बात की ज़रूरत पड़ गई है, there is a need that is about understanding what convergence is all about. So we all are dealing with convergence. We do cross platforming right now in a huge extent. हम अगर Instagram पे कोई स्टोरी ड्रॉप करते हैं, we drop it on Twitter as well in a different format and quickly drop into Facebook as a post. There are 3 different platforms, but we do cross platforming. So इस cross platforming से क्या होता है, we dish out information in a very fast paced environment, and that is the need of the hour. Like the breaking news culture is very important for us as well, but the need right now is to understand what should be done in the race of this rat race, like what should be done to control this adrenaline sometimes, क्योंकि हमको फिर एक information post करके फिर वो delete करना बहुत ही मुश्किल लगता है. So that is when our natural media instincts come into play. When you join journalism, you become the student of journalism per se. Information की जो बात आती है, when we package the information, it has to be packaged in a sensible manner. That is what we all vouch for. Packaging का मतलब ये है कि to basically those basic ethics जिसमें हम print media में पहले से ही हम काम करते थे, तो lead बनाते थे, body बनाते थे, and all the boilerplates and all we बनाते थे. तो right now as well, we have seen instances where lives have been spoiled by like irresponsible writings over social media, and then later on not tracing from those facts. So I have seen that instances as well. But here we as students of journalism as well as teachers outside, we should basically emphasize on like wait. If you can wait, and if you can't wait, just go ahead. But जब आपके clarity हो, but अगर आप wait कर सकते हो तो wait करो, so that you can realize the gravity of the situation yourself. तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती है, don't be the first at that time. Let's wait and then see the factual flow that occurs from all the quarters and then make a strong piece out of it. So this is how we are right now facing a challenge. तो अगर हम आज कोई वर्ड लिखते हैं, मुझे अगर कल पेपर में आता है तो वो मैं ऑलरेडी कल पढ़ चुका होता हूँ. This basically hits my circulation down there in the print as well. Lot of times, like I have seen, like नहीं मैंने तो ये पढ़ी हुई, मैं क्यों पेपर खरीदूँ, but and all. So but sometimes as well, like a very beautifully written piece can sell a newspaper like anything. So अगर ऐसी factual story हम यहाँ पे search करने लगे and all, and then package it for cross platforming, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने एक small story पे यहाँ पे काम किया था. I was like working on a project of collating a lot of success stories, for example on Narega, MG Narega, and their successful implementations. So I spoke to all the states and UTs and then stories started pouring in.
तो कैसे इस सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ने लाइव्स ट्रांसफॉर्म की थी। तो लद्दाख से मेरे पास 2 स्टोरीज आई थी उस वक्त। तो एक तो हमारा याक एनक्लोजर आया था, विच वॉज बेसिकली डन अंडर नरेगा हेयर। दैट वॉज ए वेरी यूनिक story for me. Another one was a glacier, like artificial glacier जो आप burning करते हैं and then the glacier formulates and the water conservation project में आता है. That was also an interesting fact जो आप retain कर रहे हो किसी चीज़ को जो flow हो रही है. So that was also being done from here. But I really realized that there was a need of a flow of a lot of stories. बहुत सारा काम हो रहा होता यहाँ पे और हो रहा होगा, बट somehow I wondered यार मुझे कौन देगा ऐसी स्टोरी. So it was you who could have been the vectors for all the other 6. So out of the 500 stories, I could only get 2 stories from Ladakh, and similarly 3 or 4 stories from J&K and all that stuff. But that is how we come as a vectors to just identify and trigger the rural development or other departments. Give us something that has changed life, that has transformed a village, that has like got people together rather than like done something in a negative way. Because negative story to hamesha like it gets amplified in a very exponential manner, but positive story के लिए भी पढ़ने वाले होते हैं, but उसमें मेहनत लगती है.